Then agile measurement. How to measure agile team performance. Agile thrives on driving results, but it is important to know exactly how to measure it. With a lot of agile KPI metrics to choose from, measuring what matter for your team is easier said than done. So how do we figure out how to measure agile team performance? Agile experts recommend hyper focusing on just four metrics detailed below: predictability, productivity, quality, and stability. तो ये फोर मैट्रिक्स हैं जो क्या बोलते हैं, जिनसे हम एजाइल टीम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. प्रेडिक्टिबिलिटी. प्रेडिक्टिबिलिटी इट मेजर्ड बाय प्लान टू डन रेशियो. प्रेडिक्टिबिलिटी कैसे मेजर करते हैं? प्लान टू डन रेशियो, मतलब क्या हमने जितना प्लान किया था और कितना कंप्लीट हुआ. ठीक है, तो प्लान कितना कंप्लीट किया, कितना प्लान था. तो प्लान टू डन रेशियो से हम लोग प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी हम लोग साइकिल लेंथ से मेजर करते हैं. क्वालिटी हम लोग क्वालिटी को स्केप डिफेक्ट रेट से हम लोग मेजर करते हैं. स्टेबिलिटी को हम लोग हैप्पीनेस मैट्रिक से मेजर करते हैं. By using first metric is predictability. By using predictability as a metric, your agile teams will be able to calculate what the likelihood of delivery will be. For example, if they commit 100 backlog items over a quarter and deliver 90, their plan to done rate would be 90%. ठीक है, जैसे कि मान लिया कोई है. प्रेडिक्टिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? प्लान टू डन रेशियो से, यानी कि क्या हमने प्लान किया और कितना हमारा कंप्लीट हुआ. अगर मान लिया कोई किसी टीम ने ये कमिट किया कि आप 100 बैकलॉग आइटम्स को एक क्वार्टर में डिलीवर करना है, मतलब 100 बैकलॉग आइटम को उसको एक क्वार्टर में डिलीवर करना था, बट तो क्या किया, 90 वो कंप्लीट कर पाया और 10 रह गए. तो प्लान टू डन रेशियो उसका कितना हुआ? 90 हुआ, यानी 90%, यानी कि उसका जो डन रेट है वो 90% हुआ. प्लान मतलब डन डिवाइडेड बाय प्लान इंटू 100, 90/100 इंटू 100, तो कितना हुआ? 90%. It is it's worth budgeting resource for any likely additional deliverables that may need to be taken on during the given period, or ensuring those that were not previously planned are counted to get more accurate results. This metric can be used to create more accurate OKRs, improve planning, and better balance resources for your agile teams. Next is productivity. Arguably one of the most important metrics, productivity is measured by cycle time. That is, how many items your agile teams can deliver in a given period of time. This should ideally be measured with an agile project dashboard. On a very simple level, you can measure productivity by using dashboard to track the amount of work completed in a sprint or cycle from when the work started to when it finished. The shorter the cycle time, the more things are getting done. प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम प्रोडक्टिविटी को साइकिल टाइम से मेजर करते हैं, यानी कि साइकिल टाइम क्या है कि कितने आपके मतलब कितने आइटम्स आपने पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में डिलीवर किए. ठीक है, कितने आइटम्स पे काम हुआ, कितने आइटम्स को, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी क्या है. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. तो कितने गिवन पीरियड टाइम में आपने कितने आइटम्स में, यानी कितने टास्क को कंप्लीट किया, वो आपका प्रोडक्टिविटी कहलाएगा. देन क्वालिटी. Quality, on the other hand, is measured by escaped defect rate, ठीक है, which
tracks the overall quality of the deliverables your team is working on. It connects customer satisfaction to the team working on the customer product or software. The lower the defect rate, the more likely the customer will be satisfied with the product. क्वालिटी किस पे डिपेंड डिपेंड करती है? ये डिफेक्ट रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम लोग इसमें एस्केप डिफेक्ट रेट से मेजर करते हैं। ठीक है, therefore we measure escape defect rate by tracking the number of problems. These can be bugs or defects found in a product once it has been released. These defects are only those that are recorded post release. ठीक है, तो escape defect rate से हम लोग क्वालिटी को मेजर करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ बग्स कितने हैं। ठीक है, उनको हम मेजर करके हम लोग उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं कि जिसमें मान लिया क्या बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ बग्स कम है वो उतना उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका डिफेक्ट रेट लोअर होगा उतनी अच्छी कस्टमर उससे उतने ज़्यादा उसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो वो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। फिर आपका आता है अगला मेट्रिक, फोर्थ, स्टेबिलिटी। दिस मेट्रिक measures how stable your team is and consequently what their output is. This is known as the human factor and essentially reminds us that if the three other metrics are absolutely perfect, the team is likely burned out or about to be. This can be assessed in the form of a survey with a ranking of the teams. Choosing the happiness metric can be used to reassess timings, resource allocation, and processes. It can also be used to improve team collaboration. Getting this metric is critical for hardworking agile teams. स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी क्या मेजर करती है कि जो आपकी टीम है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये ह्यूमन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि जो टीम है आपकी वो कितनी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब जो स्टेबिलिटी है ये हम कैसे चेक करेंगे? ये हम हैप्पीनेस रेशियो चेक करेंगे, यानी कि जो आपकी जो टीम है उसको मतलब उस टीम के साथ में हम लोग डिस्कस करके उसके हम लोग उसके टीम के रिव्यूज लेकर के हम लोग इसको मेजर करते हैं कि टीम कितनी ज्यादा हैप्पी है, वो कितनी ज्यादा स्टेबल है उस। ठीक है, तो अब उनकी जैसे कोई भी टीम है तो उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी हैप्पीनेस मैट्रिक्स कैसे, मतलब हैप्पीनेस मैट्रिक को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो ये कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, टीम को मतलब टाइमिंग्स, उनकी जो टाइमिंग्स है उसको हम लोग मतलब ईजियर करें। ठीक है, जो रिसोर्स एलोकेशन है, ठीक है, जो प्रोसेस है, उन सारी चीजों पे हम लोग हैप्पीनेस मैट्रिक को बढ़ा सकते हैं, यानी कि टीम की स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं।